বন্ধু শুনছেন 90.8 FM বেতার বিদ্যাসাগর, মেদিনীপুরের একমাত্র কমিউনিটি রেডিও চ্যানেল বেতার বিদ্যাসাগর। আপনার সঙ্গে, আপনার কথায়। দেশ থেকে বিদেশ, ক্রীড়া জগৎ থেকে শিক্ষাক্ষেত্র, নানান বিষয়ের ওপর নানান আলোচনা শুনুন বেতার বিদ্যাসাগরের বিশেষ সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান কথায় কথায়। All India Inter-University Women's Football Tournament 2023-24 organized by Vidyasagar University in association with Association of Indian Universities. গত 8 থেকে 13 জানুয়ারি আমাদের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অল ইন্ডিয়া ইন্টার ইউনিভার্সিটি উইমেন্স ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছিল এবং সেই উপলক্ষে আমরা আমাদের বেতার বিদ্যাসাগরের স্টুডিওয়ে পেয়েছিলাম বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির উইমেন্স ফুটবল টিমকে। আজ শুনবেন কথায় কথায় ইউনিভার্সিটি অফ কোটা উইমেন্স ফুটবল টিমকে। কথায় কথায় কোটা ইউনিভার্সিটি স্পন্সার্ড বাই ইউকো ব্যাংক। বাড়ি তৈরি করবেন ভাবছেন কিংবা কিনবেন, টাকা জোগাড়ের চিন্তা? আপনার প্রয়োজনে আপনার পাশে আছে ইউকো ব্যাংক। মাত্র 8.45% সুদে গৃহঋণ নেওয়ার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ইউকো ব্যাংক। জিরো রাউন্ড পেমেন্টে গাড়ি কেনার ঋণ কিংবা ব্যবসা বাড়াবেন তার মূলধন জোগাড় সহ যে কোনো ঋণ আকর্ষণীয় সুদে নেওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন আপনার নিকটবর্তী ইউকো ব্যাংকের যে কোনো শাখায়। কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলবেন, সহজ শর্তে নানা সুবিধা নিয়ে হাজির ইউকো ব্যাংক। আকর্ষণীয় সুদে ফ্লেক্সিবল রেকারিং ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট সহ সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য আসুন নিকটবর্তী ইউকো ব্যাংকের শাখায়। মনে রাখবেন, ইউকো ব্যাংক আপনার ব্যাংক। দেশ থেকে বিদেশ, ক্রীড়া জগৎ থেকে শিক্ষাক্ষেত্র, নানান বিষয়ের ওপর নানান আলোচনা শুনুন বেতার বিদ্যাসাগরের বিশেষ সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান কথায় কথায়। বন্ধুরা শুনছেন 90.8 FM বেতার বিদ্যাসাগর। এই মুহূর্তে সঙ্গে রয়েছি আমি আরজে নীল এবং স্টুডিওতে আমার সঙ্গে রয়েছে আরজে লেখা। তো আমরা দুজন এই মুহূর্তে স্টুডিও রুমে বসে রয়েছি এবং আমাদের সামনে রয়েছেন কোটা ইউনিভার্সিটি থেকে দুজন সদস্য, একজন খেলোয়াড় এবং একজন ম্যানেজার, এবং ওনাদের সাথে এই মুহূর্তে কথা বলবো আমরা এখানে খেলতে এসে ওনাদের অনুভূতি, ওনাদের ইচ্ছে এবং ফুটবলার হওয়ার যে জার্নি সেটাও আমাদের সাথে শেয়ার করে নেবেন ওনারা। আপনার নাম বাতাইয়ে। मेरा नाम गीतिका लोहमी है और मैं मैनेजर हूँ। ओके, और आप? मेरा नाम राजवंती है, मैं पूरी टीम की कैप्टन हूँ। ओके, तो आप दोनों के ऊपर ही बहुत बड़ा प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कैसे हैंडल करते हो? वो देखना पड़ता है कैसे रखना है, कैसे नहीं, टीम को कहाँ जा रही है कहाँ नहीं, इकट्ठे चलना है, कहीं इकट्ठे जाना, जैसे कैप्टन बोलेगा वही करना है पूरी टीम को। मतलब आप तो कैप्टन हो, तो आप जो बोलते हो पूरा टीम वही करती है? यस सर। मेरा काम इनको सुपरवाइज करना है, टाइम से मैच पे पहुंच जाए, मैच अच्छे से हो जाए, प्लेयर्स को इंजर्ड ना हो, अगर वो इंजर्ड है तो उसको जितना हो सके उतना जल्दी हम लोग फर्स्ट एड प्रोवाइड कर दें ताकि उसकी रिकवरी जल्दी हो सके, और पूरा टीम जो है अपनी डिसिप्लिन में रहे ताकि ज़्यादा कोई ऐसी दिक्कत ना आए। ट्राई करते हैं अच्छे से। आपकी यूनिवर्सिटी को इस इतने बड़े एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का जो अवसर मिला है, तो इट्स सच ए बिग अपॉर्चुनिटी, तो कैसा लग रहा है आपको? हमको काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि जो फैसिलिटीज़ आप लोगों ने या इस यूनिवर्सिटी जो हमको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी है वो काफ़ी अच्छी है। ऐसा हमको इतना दिक्कत नहीं आया है अभी तक भी ऐसा इवेंट के अंदर। और जो ग्राउंड है, ग्राउंड भी अच्छा है, और जो ऑफिशिएटिंग हो रही है वो भी काफ़ी फेयर हो रही है। ऐसा कुछ लगा नहीं कि कुछ पार्शल चल रहा है मैच के अंदर या फिर किसी का कुछ ऐसा नुकसान जान करके इंटेंशनली किसी को कुछ हार्म करने का ट्राई किया गया, ऐसा कुछ नहीं पता। ऐसा होता है दूसरी जगह, मत पार्शियलिटी या कुछ भेदभाव होता है? कहीं होता है कहीं नहीं होता सर। कैसे होता है थोड़ा बताइए हमें। डिपेंड करता है, ऐसे कभी कभी हो जाता है, जैसे रेफरीज होते हैं कभी पार्शियल डिसीजन दे देते हैं, पर ऐसे हम किसी इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी का तो नाम नहीं ले सकते, पर होता है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टीम है, किसी की होम टीम है तो उसके रिगार्डिंग पार्शियलिटी हो जाती है या फिर कुछ वैसा हो जाता है। ये बहुत दुख की बात है, मतलब एक टीम को अगर ठीक से खेलने नहीं देंगे तो सबको मौका मिलना चाहिए। सबको मौका मिलना चाहिए, राइट। तो अभी तो मतलब खेल शुरू हो गया, इस खेल के चलते तो आप लोगों का प्रदर्शन कैसा चल रहा है? हमारा जो कोच सर है वो जो भी टीम हमारे साथ अगला नेक्स्ट आने वाला होता है ना,
उसकी स्ट्रेटेजी हमको इवनिंग में ग्राउंड पे बच्चों को बुला करके वो प्लान करवाते हैं। जैसे कोई टीम स्ट्रांग आया या फिर कैसा जो भी टीम आया उसके अकॉर्डिंग हमको कैसे हमारी जो पोजीशंस रहेंगी प्लेयर्स की उसके वो सब वो बताते हैं, कैसे हमको स्ट्रेटेजाइज करना है, क्या टैक्टिक्स हमको अप्लाई करनी है, वो सब जो हमारे कोच सर है वो हमको बताते हैं। और एज ए कैप्टन आप कैसे मतलब टीम को मोटिवेट करना भी ज़रूरी है कि मतलब स्पिरिट हाँ, देना भी ज़रूरी है, yes, वो मैम। आप कैसे करते हो मतलब आपके अपनी टीम के साथ? जैसे हमें टीम को बोलना पड़ता है कैसे करना, कैसे नहीं, मैच में कौन बंदा कैसा है, इसलिए मैम हाँ। पहले टीम को देखना पड़ता है, उसके लिए बताना पड़ता है। पहले मैच से पहले उन्हें देखना पड़ता है 5-10 मिनट पहले कि कैसे टीम खेल रही है, कैसे नहीं, हमें कैसे कवर करके खेलना है। और उनके साथ जो मतलब रिलेशनशिप भी मतलब फ्रेंडशिप वाला होना चाहिए, Yes, मतलब ma'am। डराना नहीं नहीं, है, मैं डरना नहीं चाहिए। डरना नहीं चाहिए। Yes, हाँ। ma'am। नहीं तो वो दिल में जो बात है वो Yes, बोलना ma'am। चाहिए, नहीं Yes, तो ma'am। मेंटली अगर कुछ स्ट्रेस आ जाए तो उसका प्रभाव खेल में ही Yes। पड़ता है। यस, तो आपका जर्नी थोड़ा बताइए। पहले मैं छोटी थी मैम, मेरे घर वाले मना करते थे, मैं छुप के जाती थी खेलने के अच्छा। लिए। हाँ, सच्ची बोल रही हूँ ये बात। फिर फिर मैंने 1 साल किया ऐसे, फिर मैं अगले साल मैं नेशनल खेलने चली गई। फिर मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया मेरे साथ, फिर मेरे घर वाले सपोर्ट करते आए मेरे साथ। मतलब उनको समझने में 1 साल लग गया कि Yes, आप जब खेलने मैंने के लिए हाँ, एकदम practice करी परफेक्ट ना, है। हाँ मेहनत की ना 1 साल के लिए, फिर मैं अगले जी। साल नेशनल खेलने गई ना। हाँ, घर वालों ने पता चला हाँ ये मेहनत कर सकती है, इसलिए फिर घर वालों ने हेल्प की मेरे साथ। मेरे घर वाले बहुत करे, बहुत ज़्यादा हेल्प मेरी। मतलब जब उन्होंने देखा कि आप अच्छा खेल रहे हो, इसमें आपका मन है, या अगर आप ये खेलोगे तो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकोगे आप, तो तब उन्होंने सपोर्ट किया। और आपका भी कुछ ऐसा ही है या फैमिली का सपोर्ट मिलता था? मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, हम्म, मेरे पापा का भी सपोर्ट था, पर मतलब ऐसा था कि जब मेरा गेम ताइक्वांडो है मेन, ओके, तो वाओ। मेरे को फुटबॉल अच्छा लगता था तो हम फुटबॉल खेलते हैं, पर मेन जो हम्म। गेम है मेरा ताइक्वांडो है, तो उसकी वजह से ये ब्लैक बेल्ट हो? हाँ ब्लैक बेल्ट, वाओ, और मैं नेशनल रेफरी भी हूँ। ओके। तो उसमें ऐसा था होता है कि मतलब मेरी जो मम्मी थी उनको भी बहुत खेलने का शौक था, पर नाना जी ने कभी उनको इतना आगे नहीं जाने दिया, क्योंकि उस टाइम पे इतना नहीं करते थे अलाउ। पर फिर मम्मी का ये था कि मैं नहीं गई तो मेरी बेटी सही, तो उस चक्कर में मेरा पहला टूर्नामेंट था, उसमें भी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, उनको भेजा। मेरे घर में ऐसा स्टार्टिंग में इतना वो नहीं था, क्योंकि ताइक्वांडो वो हो गया एकदम अटैकिंग और वो सेल्फ डिफेंस टाइप का हो गया, तो उसमें क्या कॉम्पैक्ट फाइट होती है, तो लग जाए कुछ कर जाए, लड़की है कुछ ऐसा वो रहता है। तो घर वालों ने पहले बार मम्मी ने लड़ करके सबसे भेजा, फिर धीरे धीरे देखा कि हाँ इतना हो गया है, अच्छा करने लग गए, फुटबॉल में भी काफ़ी अच्छा खेलने लग गए, तो फिर सबने सपोर्ट कर दिया। अब ऐसा है कि हाँ जाना है तो जाओ, जहाँ जाना है आराम से जाओ। कभी आप फुटबॉल में खेल रहे हो तो कुछ ऐसा हुआ कि आपने सोचा नहीं, वो अच्छे की तरफ भी हो सकता है और वो बुरे की तरफ भी हो सकता है, पर कुछ ऐसा हुआ जो आपने एक्सपेक्ट कभी नहीं किया, ऐसा कुछ हुआ है? कुछ याद आ रहा है? फुटबॉल में कभी कभी खेलते टाइम इंजरीज बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, समझ में नहीं आता, अचानक से सडनली आप खेल रहे हो और आपका ही प्लेयर आप देखते हो कि वहाँ नीचे गिरा पड़ा है, स्ट्रेचर में उसको ले जाना पड़ जाता है कितनी बार। तो ऐसा होता है, वो बॉयज़ का मैचेस हो चाहे गर्ल्स के मैचेस हो, हमारी खुद के टीम मेट्स के साथ ऐसा हुआ है कितनी बार कि आप खेल रहे हो पता नहीं चलता है, अचानक से 1-2 प्लेयर्स आते हैं और देखते हो कि आपका प्लेयर नीचे गिरा हुआ है, तो उस टाइम पे बहुत शॉकिंग हो जाता है, क्योंकि आपका प्लेयर खेलने वाला अगर नीचे गिरा हो तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो फिर ऐसे अगर कुछ सिचुएशन हो कि मतलब अनफॉर्चुनेटली आप हार गए किसी मैच में, या ऐसे हो कि कहीं पर ऐसे कुछ देखकर मतलब आपके साथी को चोट लगा है और ये देख के आपका मोरल डाउन हो गया है, ऐसे वक्त पे खुद को लिफ्ट अप कैसे करते हो आप? खुद को करना पड़ता है सर, इंजर्ड हुआ उनका कवर करना सब कुछ। मतलब आपके कोच साहब इस पे कुछ हेल्प करते हैं आपको? हेल्प करते हैं। और कोच सर हमको मोटिवेट करते हैं, उसमें ये रहता है कि आपने प्लेयर इंजर्ड कर दिया, तब हमको ये है कि हमको उसकी तरफ से भी खेलना है, क्योंकि उसने उसका बेस्ट दिया इसलिए वो इंजर्ड हुआ है। अगर वो बेस्ट नहीं देता तो ऐसे ही तो कोई प्लेयर इंजर्ड नहीं हो जाता है ना, तो हमको उसके लिए भी खेलना होता है, हमारी टीम के लिए भी खेलना होता है। ख्याल कुछ याद आ रहा है कि ऐसा कुछ है कि जहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही है फिर भी हमें एडजस्ट करना पड़ता है ऐसा, और यहाँ पर आपको कैसा सुविधाएं मिल रही है जिसमें आप मतलब कंफर्टेबल हो या फिर सेटिस्फाइड हो? तो वैसे तो बहुत अच्छा है यहाँ पे रहने का भी। मतलब कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम या फिर कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम? नहीं ऐसा, क्योंकि नीचे फीमेल स्टाफ है तो वो ऊपर ऐसे किसी मेल स्टाफ को या मेल पर्सन को कभी ऊपर आने नहीं देते,
तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होता है कि बहुत सारी बार टूर्नामेंट्स में जिसमें हम गए हैं उसमें कितनी बार कोई कोई गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर या फिर ऐसी नॉर्मल सी कोई सी भी धर्मशाला हो गई, वहाँ पर रुकवा स्टे कर देते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत होती है बहुत सारी बार। जैसे कभी वॉशरूम्स की दिक्कत होगी, क्योंकि फीमेल्स के लिए मेनली उनके लिए रूम्स इतनी प्रायोरिटी नहीं होती जितनी वॉशरूम्स होते हैं। जी। ये नॉर्मल सी वो है, पर कभी कभी ये होता है कि कहीं नहीं मिल पाता है, तो उस हिसाब से वहाँ पर एडजस्ट करना पड़ता है, कहीं कुछ करना पड़ता है। বন্ধু শুনছেন 90.8 FM বেতার বিদ্যাসাগর, মেদিনীপুরের একমাত্র কমিউনিটি রেডিও চ্যানেল বেতার বিদ্যাসাগর। আপনার সঙ্গে আপনার কথায়। বাড়ি তৈরি করবেন ভাবছেন কিংবা কিনবেন, টাকা জোগাড়ের চিন্তা? আপনার প্রয়োজনে আপনার পাশে আছে ইউকো ব্যাংক। মাত্র 8.45% সুদে গৃহঋণ নেওয়ার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ইউকো ব্যাংক। জিরো রাউন্ড পেমেন্টে গাড়ি কেনার ঋণ কিংবা ব্যবসা বাড়াবেন তার মূলধন জোগাড় সহ যে কোনো ঋণ আকর্ষণীয় সুদে নেওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন আপনার নিকটবর্তী ইউকো ব্যাংকের যে কোনো শাখায়। কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলবেন, সহজ শর্তে নানা সুবিধা নিয়ে হাজির ইউকো ব্যাংক। আকর্ষণীয় সুদে ফ্লেক্সিবল রেকারিং ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট সহ সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য আসুন নিকটবর্তী ইউকো ব্যাংকের শাখায়। মনে রাখবেন, ইউকো ব্যাংক আপনার ব্যাংক। দেশ থেকে বিদেশ, ক্রীড়া জগৎ থেকে শিক্ষাক্ষেত্র, নানান বিষয়ের ওপর নানান আলোচনা শুনুন বেতার বিদ্যাসাগরের বিশেষ সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান কথায় কথায়। বন্ধু শুনছেন কথায় কথায়, কোটা ইউনিভার্সিটি স্পন্সর্ড বাই ইউকো ব্যাংক। अच्छा, मुझे ये बताइए कि फुटबॉल में आपका आइडल कौन है, मतलब किसको आप प्रेरणा समझती हो? फुटबॉल के अंदर मेरे को मेरा मतलब मैंने बताया ना कि मेरा गेम ताइक्वांडो है, तो मुझे फुटबॉल में ऐसा है कि मुझे सब मतलब देख करके सारे वो मज़ा आता है। ऐसा है कि इनको ये हाँ इसकी ये टेक्निक, इसकी ये चीज़ अच्छी लगती है, इनका डिफेंस अच्छा लगता है, इनकी मुझे अटैकिंग अच्छी लगती है, ये चीज़ मुझे ऐसी मतलब ऐसा जैसे बहुत सारे होते हैं ना, किसी कोई मैसी का फ़ैन है, कोई रोनाल्डो का फ़ैन है, मैं दोनों की। मतलब जैसे आप फुटबॉल गेम का मैं fan प्रॉपर गेम की हूँ, ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं है कि मुझे यही बहुत पसंद है, पर मुझे सबकी कोई ना कोई टेक्निक, कोई ना कोई स्किल ऐसा पसंद है। अच्छा, तो हमें जो लगता है कि फुटबॉल भी एक बहुत एग्रेसिव स्पोर्ट है और मतलब ताइक्वांडो तो है ही एक, तो आपको कुछ सिमिलैरिटी दिखती है? सिमिलैरिटी यह है कि जैसे मतलब इतना ऐसा कुछ सिमिलर नहीं है, क्योंकि किकिंग्स का है, मैं जो भी खेलता है वो जीतने के लिए खेलता है। आप चाहे ताइक्वांडो में फाइट कर रहे हो, चाहे आप फुटबॉल में मैच खेल रहे हो, आपको बस आपका एक ही एम होता है कि आपको जीतना है। आप वहाँ गोल से जीतो, चाहे ताइक्वांडो में किक मार के पॉइंट से जीतो, उसका वो यही रहता है। बस एक वो है, विनिंग स्पिरिट आप में होनी चाहिए, नहीं तो आप कोई सा भी गेम नहीं खेल सकते। और आपका कोई आइडल है फुटबॉल में या किसी और स्पोर्ट्स में जिसको देख के आपको अच्छा लगता है, आप उसकी तरह? ये अच्छा लगता था पहले। अच्छा, तो फिर वो छोड़कर आप फुटबॉल में कैसे आ गए? पता नहीं कैसे आ गए। स्कूल टाइम पे ऐसे पहले कबड्डी करती थी, फिर स्कूल टाइम में कोच आ गया, कोच ने ऐसे बोला फुटबॉल कर लो, ऐसे फुटबॉल ऐसे ही खेलते थे, मारते थे पैर। अभी ऐसा खुद मन को में अच्छा नहीं लगता? अभी मन में कुछ कंफ्यूजन है कि फुटबॉल में क्यों आया, मुझे तो कबड्डी में जाना चाहिए था। नहीं, अब तो कुछ ही नहीं है, बस फुटबॉल दिखता फुटबॉल ही है, तो हाँ, फुटबॉल बस दिखता है। हाँ। अब तो जाना है तो फुटबॉल में जाना, जो कोच भी बनना गई मैंने फुटबॉल का ही बनना है, जो करना आगे। खेल को साथ में लेकर आगे जाने के लिए हमें फिट एंड फाइन रहना बहुत ज़रूरी है, तो वो कैसे मेंटेन करते हो आप? मतलब डाइट चार्ट बोलिए या फिर कुछ भी, या फिर कोई एक्सरसाइज करते हो या फिर योगा करते हो, तो कैसे अपने आप को फिट रखते हो आप? हमारे प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, प्रैक्टिस सेशंस के अंदर आपका फिजिकल वर्क इंक्लूड हो जाता है, आपकी कार्डियो उसके अंदर हो जाती है, स्ट्रेंथ उसके अंदर हो जाती है, इंड्योरेंस सब कुछ आपका उसके अंदर कवर हो जाता है। बाकी फिर हमको सेकेंडरी हमारी डाइट के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, तो जो हमारी प्रैक्टिस सेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी डाइट चलती है। जैसे अगर हमने हैवी वर्कआउट किया या हैवी हमारा ट्रेनिंग सेशन रहा, तो हम जो हमारी इनटेक है कार्ब्स और कैलोरीज की, वो हम इंक्रीज़ कर देंगे। अगर हमारा माइनर वो चला, वर्कआउट नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ नहीं, किसी दिन सिर्फ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करी है। नॉनवेज का मेरा ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे घर में नॉनवेज चलता नहीं है, पर यह है कि मैं हाँ हम अच्छा। खा लेते हैं। घर के बाहर तो सब चलेगा। हाँ, घर के बाहर खा लेते हैं, नहीं, क्योंकि घर मम्मी वाले ने बोलते भी है खा सकते खा हैं। सकते हैं। नहीं, घर के बाहर का सबसे बड़ा है कि स्पोर्ट्स के लिए आप खुद को फिट रखना है, तो मतलब होता है कि मैंने जितना देखा है कि एक डाइट चार्ट होता है हाँ उसमें कि नॉनवेज इतना खाना ही होगा
और इसका बेस्ट सोर्स एक ऐसा फूड है जो नॉन वेज है, तो आपको तो खाना ही पड़ेगा। हाँ वो है, पर अब घर के अंदर रह करके हम वो चीज़ तो नहीं फॉलो कर सकते ना। अब हमारे घर में अलाउड ही नहीं नहीं, है, आप नहीं, खा नहीं। ही नहीं सकते हो। हम्म। आप बाहर, ये भी नहीं कि आप बाहर से लेकर के अंदर आ जाओ पका हुआ खा लो, नहीं, अलाउड ही नहीं है। अलाउड ही नहीं है। पर वो रहता है कि उसके अंदर आप वो नहीं ले सकते, लेकिन और भी वेजिटेरियन सोर्सेज हैं काफ़ी, वो ले सकते हो। नहीं तो आजकल सप्लीमेंट्स आते हैं, आप जो प्रॉपर सप्लीमेंट्स अच्छे होते हैं। हाँ, जो ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स होते हैं, कुछ अच्छा। कंपनीज ऐसी हैं जो ये वैसे नहीं रहती है, मतलब नॉर्मल जो अच्छे हेल्दी सप्लीमेंट्स होते हैं वेरीफाइड है, जो सर्टिफाइड जो कंपनीज होती हैं, उनके आप सप्लीमेंट्स आराम से खा सकते हो, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आती। और आप एक फुटबॉल प्लेयर हो, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, जो कार्डियो एक्सरसाइज करते हो आप, जो या जो कुछ रनिंग वनिंग कर लिया, उससे जो आपको फिटनेस मिलती है या उससे जो आपको जो स्ट्रेंथ मिलता है, योगा से होता है उतना? हाँ सर, योगा से भी होता है सर, हम फिट रहते हैं। जैसे हम मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ लोगों का मानना ये है कि योगा उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता, मतलब इसलिए, मतलब सब सोचते हैं कि बैठे बैठे कुछ काम कर रहे हैं, योगा से एक जगह खड़े होके कुछ कर रहे हैं, उससे ज़्यादा अच्छा होता है तो भाग लेते हैं। नहीं, दोनों अपने एस्पेक्ट में अलग अलग है। आप सिर्फ भाग करके कुछ नहीं कर सकते जब आप मेंटली पीसफुल नहीं है। आपके साथ मेंटल फिटनेस भी ज़रूरी है जितनी फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट है एक इंसान को प्रॉपर फिजिकली डिक्लेयर करने के लिए। अगर आप फिजिकली फिट है तो आपको उसके लिए मेंटली फिट भी होना चाहिए, वो हमको योगा से ही मिल पा सकता है। अच्छा। आप कुछ ही कर लो, चाहे कितना ही भाग लो, पर आपकी जो माइंड की जो एकदम कामनेस है, या फिर आपका जो मेडिटेशन करने से कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है, वो आपको योगा से ही मिलेगी, और ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप उसको। आप पहले एक अलग स्पोर्ट्स में थी, फिर कैसे आप इस जगह पे आई? हम यूनिवर्सिटी की टीम में हैं, मैं एमपीएड थर्ड सेम के अंदर हूँ, कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर। सो हम लोगों का ऐसा है कि हम जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको यूनिवर्सिटी जो भी टीम जाती है उसके साथ मैनेजर और कोच के उसमें भेजती, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके एक्सपीरियंस इंप्रूव हो, उनको पता चले कि आगे कैसे मैनेज करना है और क्या सिस्टम रखना है आगे अपने लाइफ के अंदर। उस वजह से यूनिवर्सिटी ने मेरे को इधर पे अप्रूव किया। मैं फुटबॉल के अंदर इंक्लूड हूँ, मुझे पता है फुटबॉल में क्या रखना चाहिए, किस तरीके से बच्चों को मैनेज करना है, क्या है, तो इसलिए यूनिवर्सिटी ने फिर मेरे को इधर पे इनके साथ भेजा। इस मैनेजर की पोस्ट में जो आप काम कर रहे हो, रिस्क लेना पड़ता है या कुछ स्ट्रेस लेना पड़ता है? स्ट्रेस तो बहुत हो जाता है, क्योंकि सारे प्लेयर्स हैं, सारे प्लेयर्स एक जैसे नहीं सोचते हैं, हर प्लेयर का अपना अलग अलग थिंकिंग होता है। इतना भी होता है कि हर यूनिवर्सिटी या हर टीम के साथ ऐसा होता है कि कुछ के कुछ अपने अलग ग्रुप्स होते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। तो उसमें उन सबको एक साथ लेकर के चलना, अगर कोच ने बोला ये टाइम पर आपको यहाँ पर आना है, तो सबको वो टाइम के अंदर आपको वहाँ पर लेकर के जाना है। कोई प्लेयर आपका इंजर्ड है या किसी को कोई मेडिसिन चाहिए या कुछ भी कोई तरीके का ट्रीटमेंट चाहिए, तो एज अ मैनेजर आपको वो उनको प्रोवाइड कराना पड़ता है। अच्छा। इनकी जो प्लेयर्स की डाइट होती है उसका उनको ध्यान रखना पड़ता है, तो वो सारा पूरा इन करना। और आप अभी स्टडी कर रहे हो? यस, बीए फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट आर्ट्स में हो आप, तो आर्ट्स भी पढ़ रहे हो और खेल कूद पर चल रहा है, मतलब दोनों एक साथ। यस मैम। यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? ग्रीनरी बहुत मुझे अच्छी लगी यूनिवर्सिटी के अंदर, अच्छा। जगह जगह जो फ्लावर्स अलग अलग टाइप के फ्लावर प्लांट्स लगे हुए हैं, उनके पॉटरी लगे हुए हैं, वो बहुत बढ़िया लगा। और खाने के वक्त स्वीट्स खा रहे हो? खाने के बाद स्वीट्स खा रहे, पर खाना अच्छा नहीं है। खाना भी बहुत, हम लोग खाना थोड़े चाहिए। नॉर्थ साइड के है ना, नॉर्थ के वेस्ट के, तो वेस्ट, हमको मिर्ची स्पाइसी वाला और वैसा खाने नहीं का खाते आप? आदत है, आदत तो है। खाते। मतलब हमको तीखा खाने का आदत है ना। अच्छा अच्छा यहाँ अच्छा। और की रोटियाँ भी खाना- अजीब सी है, कच्ची वो कच्ची रोटी सी रहती चावल खाने की आदत नहीं है ना है। हम इतनी। चावल भी नहीं खाते। अच्छा, मतलब पर एज ए स्पोर्ट्समैन तो आप ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खा सकते और स्वीट्स भी नहीं खा सकते, मैंने इसीलिए पूछा। हमारा तो देसी खाना। आपके जो टीम मेंबर हैं उनके लिए आपको कुछ कहना है? हमारी टीम ने अभी तक जो परफॉर्म किया वो अच्छा है, पर इतना अच्छा नहीं है जितना वो कर सकती हैं। मेरे को पता है कि वो लोग एकदम अपने हाई लेवल तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो बहुत एकदम टू क्लास, मतलब क्या बोलूँ, मतलब जीत ही जाए ऐसा परफॉर्म कर सकते हैं, उनमें इतना कैपेबिलिटी है। पर कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ प्लेयर इंजर्ड हैं, उस वजह से ये है कि वो अपना मैक्स परफॉर्मेंस अभी तक शो नहीं कर पा रहे। बस यही है कि जो अब हमारा अगला मैच है उसमें वो अपना बेस्ट दें और ट्राई करें कि वो विन होए, हमारे मैच हमारे पोल्स में रहे, हक में रहे। अच्छा, रिजल्ट और आप कुछ कहना चाहोगे एज अ कैप्टन ऑफ द टीम? यही
सर कल का मैच है, दो मैच हो लिए उतर गया, तो जो कल का मैच वो अच्छा खेलना चाहिए, पूरी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, सभी को, जो कैप्टन है और मैनेजर है, कोच हो, इसलिए। ओके, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर জয়নিং আস। দেশ থেকে বিদেশ, ক্রীড়া জগৎ থেকে শিক্ষাক্ষেত্র, নানান বিষয়ের ওপর নানান আলোচনা শুনুন বেতার বিদ্যাসাগরের বিশেষ সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান কথায় কথায়। বাড়ি তৈরি করবেন ভাবছেন কিংবা কিনবেন, টাকা জোগাড়ের চিন্তা? আপনার প্রয়োজনে আপনার পাশে আছে ইউকো ব্যাংক। মাত্র 8.45% সুদে গৃহঋণ নেওয়ার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ইউকো ব্যাংক। জিরো রাউন্ড পেমেন্টে গাড়ি কেনার ঋণ কিংবা ব্যবসা বাড়াবেন তার মূলধন জোগাড় সহ যে কোনো ঋণ আকর্ষণীয় সুদে নেওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন আপনার নিকটবর্তী ইউকো ব্যাংকের যে কোনো শাখায়। কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলবেন, সহজ শর্তে নানা সুবিধা নিয়ে হাজির ইউকো ব্যাংক। আকর্ষণীয় সুদে ফ্লেক্সিবল রেকারিং ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট সহ সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য আসুন নিকটবর্তী ইউকো ব্যাংকের শাখায়। মনে রাখবেন, ইউকো ব্যাংক আপনার ব্যাংক। এতক্ষণ শুনছিলেন কথায় কথায় ইউনিভার্সিটি অফ কোটা উইমেন্স ফুটবল টিম স্পন্সর্ড বাই ইউকো ব্যাংক। বন্ধু শুনছেন 90.8 FM বেতার বিদ্যাসাগর, মেদিনীপুরের একমাত্র কমিউনিটি রেডিও চ্যানেল বেতার বিদ্যাসাগর, আপনার সঙ্গে আপনার কথায়।